Dear students, today we are discussing the topic Dr. Maninder Kaur, Department of Physics, DAV College Amritsar. So in our previous lecture, we have learned what crystals are. Crystals are a regular arrangement of atoms or ions. As is shown in the slide, here these red points, they are showing the atoms or ions of a crystal, and we can very well see that these are arranged in a very regular arrangement. This is not the single example of the regular arrangement of atoms. Here could be many more such regular arrangements, but of different kinds. For example, here the other arrangement is here, which is regular in itself, but it is different from the previous one. Now, since here is regularity in the crystals, so we can say that here is a single unit that is repeating in our crystals. And that single unit which is repeating itself, it is termed as the unit cell. Now, before discussing the unit cell, I would like to quote a very simple example. जैसे we use bricks. ब्रिक्स की हेल्प से हम कोई भी बिल्डिंग को बना सकते हैं. कैसे बनाते हैं बिल्डिंग को? ब्रिक्स आर रिपीटेड and placed one over other to construct the bigger structures. In the same way, a unit cell, it can repeat itself to construct the whole of the structure. Now, here in the arrangement shown here, if we take a structure like rectangle, which is shown by the blue lines over here, and if this rectangle repeats itself throughout, we can build the whole arrangement by using this single unit. So this is the unit cell. Now, one thing particular about such a arrangement or such a unit cell is that atoms or ions, they are only at the corners. And such unit cells where atoms or ions are lying only at the corners, such unit cells, they are termed as permittive unit cell. Now let us consider another arrangement of atoms. Here we can think of many unit cells because unit cell can be of any shape. So here, if we consider this portion which is joined by these red straight lines and which is of the shape of a parallelogram, and from this single unit we can reconstruct the whole of this arrangement. So this parallelogram, it is again a unit cell of this structure. Moreover, since the atoms or ions are only at the corners, so this unit cell is again a permittive unit cell. Now let us consider another type of unit cell. Here this unit cell is of the form of a hexagon. And if this hexagon repeats itself, then again the whole of this structure will be reconstructed. But notice one thing particular about this, that in addition to atoms at the corners, here is an atom at the center also. So no doubt this is a unit cell, but this is another unit cell which is termed as non-permittive unit cell. So how we would define a non-permittive unit cell? Non-permittive unit cell is that which is having atoms or ions along its corners as well as along inside its body. The next topic that we will discuss is the symmetry operations. Now, why are symmetry operations considered in the crystals? Crystals में हमने देखा है कि crystals are regular arrangement of atoms or ions. Something single is being repeated. This means
they are, or the crystals are symmetric in their shape. Since they are symmetric in their shape, so there are certain operations which when we apply on those crystals, they do not make any changes to the crystals. And such operations are termed as the symmetry operations. So defining the symmetry operations formally, we will say that symmetry operation is an operation that leaves the crystal and its environment invariant. And there are four types of the symmetry operations. These are translation symmetry operation, rotation symmetry operation, reflection symmetry operation, and lastly the inversion symmetry operation. Translation symmetry operation. A lattice is said to have a translation symmetry if one moves along the crystal plane and there exists no change in the environment at the new location. Again, I will be explaining it in very simple words के क्योंकि मेरा क्रिस्टल अपने आप में ही रेगुलर है, तो अगर आप क्रिस्टल के किसी एक पॉइंट पे खड़े हो, वहां से मूव करके आप किसी और पॉइंट पे चले जाओ, तो आपको क्रिस्टल के एनवायरनमेंट में कोई चेंज ना नजर आए, उस केस में आप बोलोगे कि मेरा जो क्रिस्टल या लैटिस है इट इज हैविंग अ ट्रांसलेशन सिमेट्री। तो इसको भी एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। अभी सपोज कीजिए कि आप खड़े हैं इस एटम पे विच इज मार्क्ड एज पॉइंट ए। अभी कहां पे खड़े हो आप, उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने ओरिजिन डिसाइड कर लिया। ओरिजिन कौन सा है मेरा, पॉइंट ओ। तो कितनी डिस्टेंस पे खड़े हैं हम, उसके लिए हमें क्या चाहिए, पोजीशन वेक्टर। तो वी सपोज के आवर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू r1। अभी क्या करेंगे, इस पॉइंट ए पे पूरा एटमॉस्फेयर चेक करेंगे, पूरा एनवायरनमेंट चेक करेंगे। एनवायरनमेंट चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी विल सी फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट एंड साइड वाइज। अभी मुझे टोटल कितने एटम्स नजर आए, 8 एटम्स अराउंड मी, राइट। अभी हमने क्या करा नेक्स्ट, दैट आई मूव्ड टू अनदर पॉइंट बी। अब ये बी पॉइंट कहां पे है, इसको भी मार्क करना पड़ेगा। और उससे पहले जो मेरा ये डिस्टेंस ए टू बी मैंने मूव करा है, इट इज टर्म्ड एज द ट्रांसलेशन वेक्टर टी। कितनी ट्रांसलेशन की है मैंने इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, ये मुझे देगा ये वाला वेक्टर टी। तो फाइनली आई हैव रीच्ड एट पॉइंट बी। अब ये पॉइंट बी क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर है r2। तो पहले हमने ए पे खड़े होके अपने नेबर्स को देखा, अब बी पे खड़े हो जाओ और अगेन वॉच आउट फॉर योर नेबर्स। सी एट योर फ्रंट, एट द बैक, राइट, लेफ्ट एंड साइडवेज। Same arrangement of atoms you will feel at point B। तो जैसा एटमॉस्फेयर मुझे ए पे नजर आ रहा था, मतलब एटमॉस्फेयर से मेरा क्या मतलब कि जैसे नेबर्स जितने डिस्टेंस पे और जिस डायरेक्शन में ए पॉइंट पे थे, उतने ही मेरे नेबर्स उन्हीं डायरेक्शंस में मुझे कहां पे नजर आ रहे हैं, पॉइंट बी पे। दिस मीन्स आई कैन से के जो मैंने ये ट्रांसलेशन करी है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, दिस इज अ सिमेट्री ऑपरेशन। क्यों सिमेट्री ऑपरेशन है, क्योंकि चाहे मैं यहां से यहां तक चल के आ गई बट मुझे कोई चेंज ही नजर नहीं आई। और क्यों चेंज नजर नहीं आई, क्योंकि मेरा जो क्रिस्टल है इट इज रेगुलर। हियर इज सेम अरेंजमेंट विच इज रिपीटिंग इटसेल्फ। तो बेसिकली जो ट्रांसलेशन सिमेट्री है उसका क्या मतलब है कि अगर हम क्रिस्टल में एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे पहुंच जाएं और हमें क्रिस्टल में कुछ चेंज फील ना हो, तो इट मीन्स दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज हैविंग दैट ट्रांसलेशन सिमेट्री। और ट्रांसलेशन सिमेट्री ऑपरेशन से हमारा क्या मतलब है कि वी हैव ट्रांसलेटेड फ्रॉम पॉइंट ए
to point B and no change has been seen by us. Now let us discuss what we mean by the rotation symmetry operation. तो ट्रांसिशन सिमेट्री ऑपरेशन के लिए हमने क्या करा, हम मूव करें और हम ट्रांसलेट करें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक. बट रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन जो है वो किसके साथ कंसर्न है, इट इज कंसर्न विद द रोटेशन ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ माय क्रिस्टल बाय सर्टन डिग्री. तो पहले फॉर्मली इसकी डेफिनेशन समझते हैं. A lattice is said to have rotational symmetry about an axis if rotation of the lattice about axis by some angle theta leaves it invariant. This is the formal definition. अब इसको समझते हैं. समझने के लिए क्या करते हैं, we consider a crystal which is composed of rectangular unit cells. मतलब ये जो पिक्चर मुझे सामने नजर आ रही है इसमें मेरे पास 3 यूनिट सेल्स हैं और तीनों की शेप कौन सी है, रेक्टेंगुलर. अब क्या करें, रोटेट द सेंट्रल यूनिट सेल बाय 90 डिग्री. हो गया रोटेट. वी कैन वेरी वेल सी कि जो मेरा क्रिस्टल पहले था उससे जो अब ये शेप बनी है इट इज डिफरेंट. अब फर्दर क्या करें, दोबारा से इसको रोटेट कर दें बाय 90 डिग्री. अब जब दोबारा से 90 डिग्री रोटेट करा तो मेरा क्रिस्टल वापस अपनी पुरानी शेप में आ गया. सो क्या कंक्लूजन ड्रॉ करा हमने यहां से, दैट रोटेशन बाय 180 डिग्री इन अ क्रिस्टल with rectangular unit cell is a symmetry operation in such a crystal. राइट. तो अगर मेरे पास ऐसा क्रिस्टल है जिसके यूनिट सेल्स क्या है, रेक्टेंगल्स, तो उसमें 180 डिग्री की रोटेशन बन जाएगी मेरी रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन. क्योंकि 180 डिग्री पे रोटेट करने से मेरा क्रिस्टल अपनी ओरिजिनल शेप में ही वापस आ जाएगा और लगेगा कि क्रिस्टल में कोई चेंज नहीं हुई. So now I think you have better understood the definition of rotation symmetry operation, that it is such an operation that rotation of the lattice about an axis by some angle theta leaves it invariant. Now let us consider another example. इस एग्जाम्पल में अब हमें क्या करना है, हम जो क्रिस्टल सपोज करेंगे उसका जो यूनिट सेल है दैट इज स्क्वायर इन शेप. अब फिर से मुझे ये 3 स्क्वायर्स नजर आ रहे हैं विच इज द पार्ट ऑफ माय बिगर क्रिस्टल. अब क्या करें, अगेन जो मेरा सेंटर वाला यूनिट सेल है उसको रोटेट कर दे बाय 90 डिग्री. तो अभी 90 डिग्री रोटेशन पे ही मुझे मेरा क्रिस्टल वैसा ही वापस मिल गया जैसा कि वो ओरिजिनल था. क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि जो स्क्वायर है उसकी चारों की चारों साइड क्या है, इक्वल. तो 90 डिग्री रोटेशन पे ही मेरा क्रिस्टल अपनी ओरिजिनल शेप पे वापस चला गया. That's why we will say that a rotation by 90 degree in a crystal which is having square unit cells is a rotation symmetry operation. Now we will consider a last example in this regard. अब के जो हम क्रिस्टल सपोज कर रहे हैं उसके यूनिट सेल्स हैं हेक्सागन और अगेन हमने 3 हेक्सागन्स कंसीडर करी है. अब क्या करें कि जो सेंटर वाला यूनिट सेल है उसको रोटेट करते हैं बाय 60 डिग्री. 60 डिग्री रोटेट करने का मतलब कि उसको कंप्लीट एक साइड से हम रोटेट करते हैं, मतलब उसकी जो एडजेसेंट साइड है उसको रोटेट करेंगे. अभी फिर से मेरा जो क्रिस्टल है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया. तो व्हाट कंक्लूजन वी ड्रॉ, that rotation by 60 degree in a crystal with hexagonal unit cell is again a symmetry operation. तो अब इन तीनों एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे रोटेट करने पे मेरा यूनिट सेल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में ही आ जाता है. तो वो जो पर्टिकुलर एंगल्स हैं जिस पे रोटेशन पे मेरा यूनिट सेल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया, rotation by those particular angles only will give me
or will be a part of rotation symmetry operation. अब मान लीजिए ये मेरे पास हेक्सागन थी, इसको अगर 30 डिग्री पे रोटेट करते तो वो मेरा सिमेट्री रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन नहीं बनता, क्योंकि उसमें मेरा क्रिस्टल जो है उसकी शेप कुछ अलग आती जो कि मेरा ओरिजिनल है। तो पर्टिकुलर एंगल्स पे रोटेशन जो क्रिस्टल को ओरिजिनल फॉर्म में ही वापस ले आए, दैट आर टर्म्ड एज आवर रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशंस. नाउ द नेक्स्ट सिमेट्री ऑपरेशन इज द रिफ्लेक्शन सिमेट्री. तो इसके लिए ये बहुत ही एक सिंपल सी एग्जांपल है. यू आर वाचिंग और यू आर सीइंग अ वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ओवर हियर. तो अगर इस बटरफ्लाई का ये सेंटर निकाल लें हम और इसको राइट साइड देखें, लेफ्ट साइड देखें, तो मेरा जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है दे आर आइडेंटिकल. दिस मीन्स ये जो मेरी सेंटर वाली लाइन है वो इस बटरफ्लाई को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रही है. तो सिमिलरली अगर मेरे क्रिस्टल्स में भी कुछ ऐसी कंडीशन बने कि हम कुछ ऐसी लाइन उनमें ड्रॉ कर सकें कि उनका राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें बिल्कुल आइडेंटिकल नजर आए, तो वी विल से दैट आवर क्रिस्टल इज हैविंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री. So again here we will start with a formal definition of reflection symmetry. A crystal is said to have reflection symmetry about a plane if it is left unchanged in every way after being reflected in a plane. Or in other words, the plane divides the crystal into two identical halves. Okay, here I have left this statement deliberately, that about a plane or about a line. This point will be clear very shortly when we will consider the examples. अब अगर तो मेरे पास एक 3 डायमेंशनल शेप है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा यूनिट सेल है एक क्यूबॉइड, और देखो यहाँ पे अगर इसको ये लेंथ वाइज अगर ये एक प्लेन यहाँ पे हो जो इसको हाफ्स में डिवाइड कर दे, तो दिस प्लेन विल बिकम सच अ प्लेन दैट प्रोवाइड्स मी द रिफ्लेक्शन सिमेट्री. इस प्लेन के अराउंड ये वाला हाफ और ये वाला हाफ हैं दोनों आइडेंटिकल, तो वी विल से के crystal is having reflection symmetry about this vertical plane, right? अभी एक सेकंड सिचुएशन इमेजिन करो कि अब मेरा जो प्लेन है वो मेरे क्रिस्टल को हाइट वाइज हाफ कर रहा है, तो ये वाला लोअर हाफ और ये वाला अपर हाफ अगेन दोनों क्या है, बिल्कुल आइडेंटिकल, बट दोनों क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्पेस है तो इसको हाफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक फुल प्लेन. ऐसे ही विड्थ वाइज भी आप इसको हाफ कर सकते हो, तो विड्थ वाइज इसको कौन हाफ कर रहा है, ये वाला प्लेन. दिस मीन्स अगर मेरे पास मेरा जो क्रिस्टल है उसके यूनिट सेल्स हैं क्यूबॉइड्स in 3 dimensions, तो such cuboids they are having 3 planes of symmetry. तो जब हम 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की या 3 डायमेंशनल यूनिट सेल की बात करेंगे तो मेरे जो प्लेन्स होंगे या जो मेरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री आएगी वो आएगी अबाउट द प्लेन्स, राइट. बट इन कंट्रास्ट टू दिस अगर मेरा यूनिट सेल है 2 डायमेंशनल, अगर मेरा यूनिट सेल है 2 डायमेंशनल तो उसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री आएगी अराउंड सम लाइन, ठीक है. तो ये मेरे पास रेक्टेंगल है, इसको अगर वर्टिकली ये लाइन अगर वर्टिकली इसके सेंटर से पास कर रही है तो इसका लेफ्ट वाला पोर्शन राइट वाले पोर्शन के एग्जैक्टली सेम है. तो 2 डायमेंशनल यूनिट सेल्स में जो मेरी रिफ्लेक्शन सिमेट्री आएगी वो आएगी अबाउट अ प्लेन. और इस रेक्टेंगल के केस में आप देखो कि देयर आर 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री, एक जो कि वर्टिकल है और इसको हाइट वाइज इसको मतलब ये लेंथ वाइज हाफ में डिवाइड कर रही है,
और जो सेकंड वाली एक्सिस है वो इसको इस अलोंग इट्स कंप्लीट लेंथ हाफ में डिवाइड कर रही है, इन इट्स लोअर पोर्शन एंड इट्स अपर पोर्शन। तो अब अगर वापस चल के इस स्टेटमेंट को पढ़े कि क्रिस्टल इज said to have reflection symmetry about a plane। रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट अ प्लेन कब आएगी? जब मेरा यूनिट सेल है 3 डायमेंशनल, और इट इज अबाउट अ लाइन कब? जबकि मेरा जो यूनिट सेल है वो होगा 2 डायमेंशनल, राइट। तो 3D में जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो है अबाउट अ प्लेन, और 2 डायमेंशनल में जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री है वो है अबाउट सम एक्सिस और अबाउट सम लाइन। And the last symmetry operation is the inversion symmetry operation। और inversion पहले इसकी formal definition देखते हैं। A crystal is said to have inversion symmetry about a point if for each point located at R there exists an identical point at minus R। Now what is my R? R is its position vector but with positive coordinates, that is इसमें मेरे x, y और z सभी क्या रहेंगे? पॉजिटिव। और माइनस आर का क्या मतलब है? द सेम कोऑर्डिनेट्स इनवर्टेड। माइनस आर से मेरा मतलब होगा जिसमें मेरे पास x चेंज हो जाए माइनस x में, y चेंज हो जाए माइनस y में, z चेंज हो जाए माइनस z में। इसके लिए अब देखते हैं ये एग्जांपल, राइट। अगर सपोज करें कि मेरा ये वाला पॉइंट है कि जिस पॉइंट के अराउंड मेरी इन्वर्शन सिमेट्री पॉसिबल है, तो अगर हम ये अपर वाला पोर्शन देखें, दिस पोर्शन इज टोटली आइडेंटिकल विथ दिस पोर्शन। तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं पॉइंट्स को बाय द vectors or by the lines which are passing through this center, then we will say कि if I take this as positive of R, this whole portion is equal to minus of R. So for such a shape, this one, we will have that such crystal is having an inversion symmetry about this point I. I hope you must have understood the concept. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe the channel if you have understood the concept.